अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रवी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर आला KCR ने मुसलमानों को रमज़ान मुबारक की दी मुबारकबाद। गंगा जमनी तहजीबी विरसे की अलामत तेलंगाना, दीगर रियासतों के लिए एक मिसाल। बंजारा हिल्स में वाक़े पब पर रात 3 बजे तक जारी रिव्यू पार्टी पर टास्क फोर्स का धावा। 150 अफराद बशमुल लड़कियां ज़ेर हिरासत। पब वाक़े पर लापरवाही बरतने के सिलसिले में इंस्पेक्टर बंजारा हिल्स मुअत्तल, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने की कार्रवाई। शहर में ड्रग्स के चलन और पब कल्चर के लिए TRS हुकूमत जिम्मेदार। रियासती वजीर KTR की पुष्टपनाही में ड्रग्स रैकेट जारी। BJP और कांग्रेस कायदीन ने लगाया इल्जाम। अब खबरें तफसील से। वर्किंग प्रेसिडेंट तेलंगाना कांग्रेस अंजन कुमार यादव ने कहा है कि पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफे से मुतवस्सित तबके की आवाम काफ़ी परेशान है। मीडिया से बात करते हुए अंजन कुमार यादव ने कहा कि YSR कांग्रेस हुकूमत ने महंगाई पर काबू पाने के लिए वैट में कमी की थी। उन्होंने बताया कि फ्यूल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ तेलंगाना कांग्रेस कायदीन 7 अप्रैल को विद्युत सुधार सिविल सप्लाई भवन पर अपना एहतजाज दर्ज करवाएंगे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस से इजाफी शुदा कीमतों में कमी तक अपना एहतजाज जारी रखेगी। గ్యాస్ ధర 414 రూపాయలు ఉండే, డీజిల్ ధర 55 రూపాయలు ఉండే, పెట్రోల్ ధర 71 రూపాయలు ఉండే. ఈరోజు 115 రూపాయలు పెట్రోల్ ధర, డీజిల్ ధర 100 రూపాయలు, గ్యాస్ ధర 1400 రూపాయలు. ఇట్లా ధరలన్నీ కూడా ఆకాశాన్ని అంటా ఉన్నాయి. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రెండు కూడా ప్రజలను నడ్డి విరిగే విధంగా దోచుకొని తింటున్నారు. ఈరోజు వీళ్ళు ట్యాక్స్, రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు దీని మీద ట్యాక్స్ పెట్టకుంటే 70 రూపాయలకే డీజిల్, పెట్రోల్ ఇచ్చే పరిస్థితి ఉంటుంది. దేశంలో ఉన్నటువంటి 25 రాష్ట్రాలలో వాళ్ళ రాష్ట్రాలలో 50 రూపాయలు వాళ్ళు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పెట్రోల్ మీద, డీజిల్ మీద కూడా ఆ ప్రభుత్వాలన్నీ కూడా 50 రూపాయలు తక్కువ చేసినాయి. మన రాష్ట్రంలో కూడా గతంలో రాజశేఖర రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు డీజిల్ ధర, గ్యాస్ ధర ఎంతవరకు, గ్యాస్ ఇంకా 50 రూపాయలు తగ్గించింది, గ్యాస్ సిలిండర్ ఇంకా. అదేవిధంగా ఈరోజు ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఈ ప్రజలను దోచుకొని ప్రజలపై భారం మోసి ఎనలేని లక్షలాది రూపాయలు ట్యాక్సుల రూపంలో వసూలు చేస్తున్నటువంటి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, దానికి వ్యతిరేకంగా రాష్ట్రంలో నిన్ననే మన PCC అధ్యక్షుల వారు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో చెప్పడం జరిగింది. కేంద్ర రాష్ట్రాలు ఇద్దరు కూడా కౌల పిల్లలు లాంటి వారు. గత 8 సంవత్సరాలలో 36 లక్షల కోట్ల పన్నుల రూపంలో భారం మోపాయి. ఎన్నికలు వచ్చినాయి. ఎన్నికల ముందు గత 5 రాష్ట్రాల్లో ఎలక్షన్లు ఉంటే 4 నెలలు కూడా ఈ రేట్లు పెంచలేదు. ఎలక్షన్ అయిన 3 రోజులకే तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ ने शहर में बढ़ते पब कल्चर और ड्रग्स माफिया की सरगर्मियों में इजाफे के लिए TRS हुकूमत को मोरिद इल्ज़ाम ठहराया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शहर में पब्स रात 3 बजे तक काम कर रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर ठप हो चुका है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि KTR की पुष्टपनाही में ही ड्रग्स के कारोबार जारी हैं, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि आवाम में ये खदशात पाए जाते हैं कि KTR खुद ड्रग्स के आदी हैं। अगर ऐसा नहीं है तो वो टेस्ट के लिए अपने खून का नमूना फराहम करें। 2014లో తెలంగాణలో TRS అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మద్యం ఏర్లై పారుతా ఉంది ఈ రాష్ట్రంలో. మంచి సాంస్కృతిక నిలవనట్టు తెలంగాణని యావత్ దేశంలోనే అత్యధిక మద్యం అమ్మే రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దిన ఘనత KCR గారిది. గంజాయి రాష్ట్రంగా మారుతూ ఉంది, డ్రగ్స్ రాష్ట్రంగా మారుతూ ఉంది. విచ్చలవిడిగా డ్రగ్స్ ప్రవేశిస్తా ఉన్నాయి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో.
లా అండ్ ఆర్డర్ కంట్రోల్ తప్పింది. ధనార్జనే ధ్యేయంగా మద్యం షాపులు, బార్లు, పబ్బులు అర్ధరాత్రి 3 గంటల వరకు నడుస్తూ ఉన్నాయి. తాయి తూలుతూ బడా బాబుల పిల్లలు బయటకు వెళ్ళే వరకు కూడా పబ్బులు నడుస్తూ ఉన్నాయి. ఎవరి ప్రమేయం వల్ల నడుస్తూ ఉన్నాయి? ఈ రాష్ట్రంలో పోలీస్ యంత్రాంగం పనిచేస్తూ ఉందా? శాంతి భద్రత పరిరక్షణ సరిగా జరుగుతూ ఉందా? ఎవరి ప్రమేయం వల్ల అర్ధరాత్రి 3 గంటల వరకు పబ్బులు తెరిచి ఉంచుతా ఉన్నారు? ఎవరు ఒత్తిడి వల్ల తెరిచి ఉంచుతా ఉన్నారు? కేసీఆర్ తెలియకుండా జరుగుతూ ఉందా? కేటీఆర్ తెలియకుండా జరుగుతూ ఉందా? మాలాంటి వాళ్ళం పిల్లల్ని वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने रियासत के मुसलमानों को माह रमज़ान मुबारक के आगाज़ पर मुबारकबाद पेश की है, जबकि दूसरी जानिब रियासती वज़ीर सत्यवती राठौर ने कांग्रेस रुकन पार्लिमान उत्तम कुमार रेड्डी की जानिब से पार्लियामेंट में ख़वातीन पर दिए गए बयान की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। नाज़रीन, इन खबरों के साथ आइए देखते हैं दीगर खबरें। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के मुसलमानों को माह रमज़ान मुबारक के आगाज़ पर मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की जानिब से अक़ीदत व एहतराम के साथ रोज़े रखे जाते हैं और इबादत की जाती है। वज़ीर आला ने मुस्लिम भाइयों से अपील की है कि वो अपनी इबादतों के दौरान रियासत में अमन व अमान की बरकरारी के साथ साथ रियासत की गंगा जमनी तहज़ीब को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए भी दुआ करें और वो उम्मीद करते हैं कि माह रमज़ान और ईद लोगों की ज़िंदगियों में खुशियां लाएगी। माह रमज़ान मुबारक के आगाज़ के साथ ही दावत इफ्तार का भी मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आगाज़ हो चुका है। क़ायद मुखिना कुल मजलिस मुस्लिमीन अकबरुद्दीन ओवैसी ने रियासत नगर बाज़ार में मुनक़्क़िदा दावत इफ्तार में मेहमान खुशी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर मुतल्लिक़ा डिवीज़न कॉरपोरेटर मिर्ज़ा मुस्तफ़ा सलीम बेग के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत और महकमे सेहत की जानिब से रियासत भर में हेल्थ सर्वे जारी है। इस सिलसिले में रियासत के 28 अजला बशमुल हैदराबाद में किए गए सर्वे में ज़्यादातर अफराद शुगर और ब्लड प्रेशर से मुतासिर पाए गए। महकमे सेहत के अहदेदारों के मुताबिक हैदराबाद में हर 100 अफराद में से 24 था 30 अफराद शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ पाए गए हैं और रियासत भर में किए गए हेल्थ सर्वे के मुताबिक 12 लाख से ज़ायद अफराद ब्लड प्रेशर और 5,95,000 अफराद शुगर से मुतासिर पाए गए। डॉक्टरों ने आवाम को मशवरा दिया कि अपनी ज़िंदगियों के मामूली में तब्दीली लाते हुए रोज़ाना चहलकदमी पर तवज्जो दें और ग़िज़ा में एहतियात करने पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करें, जबकि दवाओं का इस्तेमाल पाबंदी के साथ किया जाए। सदर वायएसआर तेलंगाना पार्टी वाईएस शर्मिला की पदयात्रा आज 44वें दिन में दाखिल हो गई। उन्होंने आज नलगोंडा ज़िले के सूलियापेट के कई एक देहातों में आवाम बिलखुसूस नौजवानों से मुलाकात की और उन्हें तयक़ुन दिया कि ये हुकूमत की जानिब से तमाम 1,92,000 मखलूआत जायदादों पर तक़र्रुरात के सिलसिले में एलामिया जारी करने तक वो अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगी। वाईएस शर्मिला का सूलियापेट के देहात में गुज़िश्ता 4 रोज़ से आवाम की जानिब से वालिहाना खैर मक़दम किया जा रहा है।
रियासती वज़ीर सत्यवती राठौर ने मीडिया से बात करते हुए साबिक़ सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी की जानिब से ख़वातीन से मुताल्लिक़ पार्लियामेंट में उठाए गए सवाल और उसमें तेलंगाना में ख़वातीन के साथ नाइंसाफ़ी के इल्ज़ाम पर बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि उत्तम कुमार रेड्डी तेलंगाना को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हक़ाइक़ ये है कि तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ख़वातीन की तरक्की के साथ साथ उनका तहफ़्फ़ुज़ करने के भी इक़दामात किए हैं। उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी टीचर्स की तनख्वाहों में बड़े पैमाने पर इजाफा करने के इक़दामात करने के अलावा आशा वर्कर्स को हर तरह की सहूलत फराहम की जा रही है और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने शी टीमों का क़याम अमल में लाते हुए ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है, जिसकी वजह से ख़वातीन को हिरासा करने के वाक़यात में बड़ी हद तक कमी वाक़ हुई है। చెప్పే ఒక తల్లి తర్వాత తల్లి లాంటి మరి అంగన్వాడీ టీచర్ను వర్కర్ అని పిలవడం అది గౌరవప్రదంగా లేదు కాబట్టి టీచర్ గా పిలవాలని కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మాత్రమే అంగన్వాడీ టీచర్లను మనం టీచర్లుగా పిలుస్తాం. ఈ పదం ఇంకెక్కడ వాడరు, వర్కర్లుగానే వాడతారు. అలాగే అంత గౌరవం కేసీఆర్ గారికి అంగన్వాడీ టీచర్ల గౌరవాన్ని పెంచే విధంగా వాళ్ళు ముందు వర్కర్ల నుంచి టీచర్లుగా మార్చిన ఘనత ఈ ప్రభుత్వానికి, ఈ ముఖ్యమంత్రి గారిని చెప్పి నేను ముందుగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అన్ని పోషకాలు ఆ రోజు ఉండే టెక్నాలజీ కావచ్చు, ఆ రోజు ఉండే సైన్స్ కావచ్చు, ఆ రోజు ఉండే అవసరాల దృష్ట్యా అంతగా దాన్ని ఉపయోగించుకోలేదు టీఎస్ ఫుడ్స్ ని. కానీ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఇటు ఇక్రిసాట్ తోని, ఇటు ఎన్ఐఎం తోని, అలాగే మరి నీతి ఆయోగ్ వాళ్ళను పిలిపించుకొని బాలామృతం ఏ విధంగా ఉండాలి, దానికి ఎలాంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉండాలని అనేక సార్లు రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం పంపించే గోధుమలను కేవలం బాలామృతానికే ఉపయోగిస్తాం. అలాగే వాళ్ళు ఇచ్చిన గోధుమలు సరిపోవట్లేదు, ఆ కోటాను పెంచమని ఎన్నడూ లేని విధంగా 75 నుంచి టీఎస్ ఫుడ్ రన్ అయితే కేంద్రంలో బీజేపీ వచ్చిన తర్వాత మాకు ఒక క్వార్టర్ కోవిడ్ అప్పుడు గోధుమలు సప్లై చేయకపోతే నేనే స్వయంగా కేంద్ర మంత్రి గారి దగ్గరికి వెళ్లి मलारदेपल्ली उमदागुड़ा में एक रहजनी की वारदात पेश आई, जिसमें जनरल स्टोर पर ठहरी खवातीन के गले से चेन उड़ा ली गई। पुलिस के मुताबिक एक्टिवा पर 2 रहजन पहुंची और बटर मिल्क खरीदने का बहाना करते हुए माधवी नामी खातून के गले से तिलाई चेन छीनी गई। मुतल्लिका पुलिस ने इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया है। అంటే తీసుకోండి అక్కడ నేను చెప్పిన లోపల లేవా ఇంకా అడిగిండు. అయితే లోపల ఉండవు, మా బయటనే ఉంటే నీకు ఏది కావాలో తీసుకో, నీకు నచ్చింది అని చెప్పి ఒకటి తీసుకుని ఫస్ట్ లేచి టమాటా లేచి తీసుకున్నాడు. తీసుకొని కిందికి వెళ్ళిపోయినాక మళ్ళీ వచ్చిండు, ఇంకోటి తీసుకో అన్న. తీసుకున్నాక మళ్ళీ పోయిండు, కిందికి పోయి మళ్ళీ వచ్చిండు. మిక్సర్ కావాలమ్మా అన్నాడు. ఉంది అన్న. అంటే 5 రూపాయలు తీసి చాలు అన్నాడు. సరే అని జోకి చేతికి ఇచ్చిన పొట్లం కట్టి తీసుకొని కిందికి వెళ్ళిపోయాను. అన్న ఇంకా 5 రూపాయలు అన్న. మళ్ళీ కిందికి పోయి వచ్చి పైసలు లేవు 5 రూపాయలు, సరే నేను మిక్సర్ తీసుకోమా వద్దని చెప్పిండు. సరేలేని ఇట్లా పెట్టిన కదా, ఇక్కడ ఈ భాగంలో పెట్టినైనా నా చేతితోనే అటు తీసుకుని అటు పెట్టిన అంతే. ఇట్లా తీసి ఇట్లా పెడుతున్నా, ఇట్లా పట్టేసిండు. పట్టేవారికి దొంగ నేను ఇట్లా పట్టుకున్నారు, ఇట్లా పక్క పట్టుకుని మనకి గుంజిన ఇట్లా ఇంకా చేతి ఇట్లా గుంజేసి వెళ్ళిపోయింది కిందికి అంతే. మాట్లాడిండు అంత తెలియవాళ్ళని నేను. మాస్క్ కూడా పెట్టుకున్నా కొంచెం అంత అబ్జర్వ్ లాగా అనిపిస్తుంది. మాస్క్ ఉంది. बीजेपी ने बंजारा हिल्स में वाक़ पब पर धावा करते हुए रिव्यू पार्टी करने वाले और ड्रग्स लेने वाले नौजवानों के खिलाफ कार्रवाई करने पर हैदराबाद टास्क फोर्स को मुबारकबाद पेश की है। बीजेपी पार्टी दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि ये तेलंगाना हुकूमत की नाकामी है कि वो ड्रग्स की लानत को ताहाल ख़त्म नहीं कर पाई है। కావచ్చు, లేకపోతే పోలీస్ యంత్రాంగం కావచ్చు, నిఘా వ్యవస్థ కావచ్చు, ఈరోజు నిఘా వ్యవస్థ అనేది నిద్రపోతున్నటువంటి పరిస్థితులలో కనిపిస్తా ఉన్నది. లేకపోతే ఇన్ని కేసులు జరుగుతున్నటువంటి హైదరాబాద్ లో ఈ రోజు వరకు కూడా ఒక్క కేసును కూడా మనం పూర్తి స్థాయిలో పరిష్కారం చూపకపోవడం అనేటువంటిది నిజంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వైఫల్యంగా భారతీయ జనతా యువ మోర్చా ఈరోజు హెచ్చరిస్తా ఉన్నది. ఈ సందర్భంగా భారతీయ జనతా యువ మోర్చా ఒకటే డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నది. ఈరోజు
నిన్న పట్టుబడినటువంటి కేసులో వ్యక్తులు ఎంతటి వారైనా సరే, రాజకీయ ప్రముఖుల పిల్లలైనా సరే, రాజకీయ ప్రముఖులైనా సరే, సినీ తారలైనా సరే, ఎంతటి వారైనా కూడా ఈ మహమ్మారి గ్రామాల వరకు ప్రబలి చిన్న माह रमज़ान मुबारक के पेश नज़र मजलिस क़ायदीन की जानिब से रमज़ान राशन पैक्स की तक़सीम का सिलसिला जारी है। चुनांचे इसी तर्ज पर बल्दी डिवीज़न किशनबाग के मजलिसी कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा ने राशन पैकेज तक़सीम किए। कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा की क़यामगाह पर तक़सीम किए गए रमज़ान राशन पैकेज को मुस्तहिक़ीन के हवाले किया गया। बादज़ा हुसैनी पाशा ने बताया कि सदर मजलिस से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मज़कूरा राशन पैक्स ख़ुसूसी तौर पर मजलिसी सुदूर इब्तिदाई में तक़सीम किए गए हैं, जबकि इसकी निगरानी रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने की। जबकि हुसैनी पाशा ने यह भी बताया कि गरीब और मुस्तहिक़ आवाम में भी ये राशन पैक्स तक़सीम किए गए हैं। इस मौके पर मुतालिका मजलिसी सरगर्म कारकुनान और कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा के क़रीबी रुफ़क़ा भी मौजूद थे, जिन्होंने इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ख़ासतौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर राशन किट बांटा गया है सदर मुतमदीन में इब्तिदाई और गरीब आवाम को। जिस तरीके से आवाम परेशान है लॉकडाउन की वजह से, हाल में लॉकडाउन जो हुआ उसकी तरफ से लोगों का कारोबार मुतासिर था, तो ख़ास तौर पे एमपी साहब का और एमएलए साहब का कहना था कि आवाम को अपने जो एरिया में है, जो आवाम परेशान है, उनको किट दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये किट से 1 महीना चले हुई सी किट है। आवाम बिल्कुल सहरी और इफ्तार बेहतरीन हिसाब से कर सकती है इसमें, क्योंकि एक फैमिली को टेंशन नहीं हो सकता है। जिस फैमिली में 5 से 8 आदमी रहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये किट इतनी है कि वो 8 फैमिली सुकून से इसमें गुजार बसर कर सकते 1 महीने तक। मैं बैरिस्टर नाज़रीन, रूबी न्यूज़ में वक्त चला एक मुख्तसर से वक्फे का। अस्सलामुअलैकुम। KMR चेयरमैन जनाब मूसा सिद्दीकी का एक ही ख्वाब, हर किसी के पास जाती मकान हो। KMR इंडिया ऐसा नाम जो पिछले 23 साल से बेहतरीन खिदमत के लिए मशहूर है। 200 एकड़ पर एयरपोर्ट से पहले बस डिपो से 6 किलोमीटर पर शानदार इलाका कायम कर चुके हैं, जहां पर मीठे पानी और किराएदार की सहूलत मौजूद है। अब मूसा नगर में नाकाबिले यकीन दाम 4 लाख और 5 लाख में प्लॉट, 13 लाख में शानदार RCC मकान। KMR से जुड़े, किराएदार नहीं मकानदार बने, फौरी फायदा उठाएं। आरामगढ़ X रोड, हैदराबाद। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। गुलाम जिलानी साकिन अक़ब चारमीनार बस स्टैंड का 2 अप्रैल को इंतकाल हो गया। नमाज जनाज़ा बाद नमाज तरावी मक्का मस्जिद में अदा की गई, जबकि तदफीन पेटला बुर्ज में वाक़ ख़बरस्तान में अमल में आई। मज़ीद तफ़सीलात के लिए मोबाइल नंबर 8801345520 या फिर 9000013555 से हासिल की जा सकती हैं। मोहम्मद ज़हीरुद्दीन ख़ान मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान के लिए गुरबा और मुस्तहिक़ ख़ानदानों में राशन पैक्स की तक़सीम अमल में लाई गई। ट्रस्ट के ज़िम्मेदारों ने बताया कि ये 19वां साल है और रमज़ान राशन पैक्स की तक़सीम का सिलसिला जारी है। उन्होंने बताया कि 1700 ख़ानदानों में राशन पैक्स की तक़सीम अमल में लाई गई है। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि आगे भी रमज़ान राशन पैक्स की तक़सीम का सिलसिला जारी रहेगा और दीगर फलाही काम भी ऐसे ही किए जाएंगे। रात की मुबारकबाद पेश करते हैं मोहम्मद ज़हीरुद्दीन ख़ान मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट के तरफ से। आज मोहम्मद ज़हीरुद्दीन ख़ान मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट के 19वां साल कंप्लीट हो रहा है। रमज़ान राशन तक़सीम में अल्लाह पाक का करम है, इस साल भी पहले के साल से ज़्यादा जो है सो लोगों में अनाज तक़सीम हो रहा है। आसपास 1700 चिल्लर फैमिलीज़ हैं, छोटे बड़े फैमिलीज़ मिला के, और
जितने फैमिली मेम्बर में जैसा 5 है उसके लिए अलग मुख्तसर है? हाँ, बड़ी फैमिली से उनको 25 किलो का पैकेज है और कुछ छोटे फैमिली है उनको 20 किलो का पैकेज है और 2 आदमी 3 आदमी की फैमिली है उनको 12 किलो का पैकेज। सर कितने साल से आप लोग तकसीम हो रहे हैं? अल्लाह पाक का करम है, ये 18वां साल या 19वां साल में दाखिल हो गए। सर आप लोगों ने कोई ट्रस्टी है या आपके? टास्क फोर्स टीम ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए बंजारा हिल्स में वाक़ एक पब पर रात 3 बजे धावा किया और वहां रिव्यू पार्टी कर रहे तकरीबन 150 अफराद जिनमें लड़कियां भी शामिल थी हिरासत में लिया गया। बताया गया कि मुबैना तौर पर इस पार्टी में ड्रग्स का भी इस्तेमाल किया गया। टास्क फोर्स ने हिरासत में लिए गए अफराद को बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया, जबकि पूछताछ के बाद तकरीबन अफराद को रिहा कर दिया गया, जबकि 36 अफराद को पुलिस स्टेशन में ही रोका गया और केस भी दर्ज किया गया। అందరూ ఎంప్లాయీస్ पब वाक़या मंजर आम पर आने के बाद कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने लापरवाही का मुजाहरा करने वाले इंस्पेक्टर बंजारा हिल्स से शिवा चंद्रा को फौरी असर के साथ मुअत्तल कर दिया कि नागेश्वर राव को SHO बंजारा हिल्स के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। पब वाक़े के बाद ACP बंजारा हिल्स डिवीज़न M सुदर्शन को चार्ज मेमो जारी किया गया है। दक्कन NRIs ग्रुप जिद्दा और हैदराबाद की जानिब से हर माह पाबंदी के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया जाता है और इदारे की जानिब से की जा रही सरगर्मियों का जायज़ा भी लिया जाता है। 1 अप्रैल को मुनक़्क़िदा इस इजलास में सहाफ़ी अबू एमल ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की और ख़िताब भी किया। NRIs ग्रुप के चेयरमैन इंजीनियर सैयद अब्दुल क़दीर खालिद ने इजलास की सदारत की, जबकि कारगुजार सदर इंजीनियर GM खान अनवर के अलावा दीगर अराकीन और ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। अबू एमल की सहाफ़ती और समाजी खिदमात की सताइश करते हुए उन्हें अवार्ड ऑफ एक्सलेंस से भी नवाजा गया। वरना वही सिंपल तरीके से जो है आप जिस अंदाज में रहते हैं, मैं समझता हूँ आपका शुमार ऐसे जर्नलिस्टों में होना चाहिए जैसा कि बरखा दत्त है या फिर जो है हमारे NDTV के रवीश कुमार है। ये लाइन भी आप साफ ही हैं, इसके बावजूद आप आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर।
वज़ीर आला KCR ने मुसलमानों को रमज़ान मुबारक की दी मुबारकबाद। गंगा जमनी तहजीबी विरसे की अलामत तेलंगाना, दीगर रियासतों के लिए एक मिसाल। बंजारा हिल्स में वाक़ पब पर रात 3 बजे तक जारी रिव्यू पार्टी पर टास्क फोर्स का धावा। 150 अफराद बशमुल लड़कियां ज़ेर हिरासत। पब वाक़े पर लापरवाही बरतने के सिलसिले में इंस्पेक्टर बंजारा हिल्स मुअत्तल, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने की कार्रवाई। शहर में ड्रग्स के चलन और पब कल्चर के लिए TRS हुकूमत जिम्मेदार। रियासती वजीर KTR की पुष्टपनाही में ड्रग्स रैकेट जारी। BJP और कांग्रेस कायदीन ने लगाया इल्ज़ाम। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।